Welcome to this another video session on e-commerce series. ASP.NET MVC.NET फ्रेमवर्क कवर कर रहे थे हम लोग। बहुत कुछ वीडियोस पे कवर कर चुके हैं और कुछ आज के वीडियो में हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो इनवॉइस किस तरह से मैं बना सकूं। इनवॉइस जब मैं कुछ पेमेंट कर रहा हूं, पेमेंट करने के बाद जब मेरा डेटा जो भी चीज़ें प्रोडक्ट्स में पेड कर रहा हूं उसको मैं इनवॉइस एक दिखाना चाहता हूँ यूज़र को, ताकि और वो लेटर ऑन मैं उस इनवॉइस को रिटेन रखूंगा। जब भी कोई इनवॉइस चाहिए कोई भी एक ऑर्डर का, तो वो उससे उठा के देख सकता है और उसके हेल्प से उसके बारे में जान सकता है कि क्या क्या चीज़ें मैंने बाई की थी उस कंडीशन में। कुछ डीमेरिट हम लोगों का है। जो मैंने ऑर्डर आइटम्स का पेज बनाया था, उसमें क्या डाला था मैंने डेटाबेस में प्रोडक्ट और क्वांटिटी डाल रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। आई एम नॉट सेविंग द प्राइस, but I should save the unit price as well in that, because unit price might change of any product. So for that I should retain the unit price. I should save in the database in that case. One more thing I have to maintain in the orders tables, that I have to maintain the order ID of the order ID of the provider that I am using. Like if I am using a Razorpay, I will be keeping the order ID of that. For now, like what I have done, I have created an ID which is of a unique field and it is auto generated primary key, so I can't directly update it. I can update it, but I'm keeping that as well, because there might be some scenario like where I'm working with COD kind of stuff. For COD, like I will not getting any order ID from our vendor, because I will not have any vendor in that case. So in that case, like I have to an auto generated field. So for that I am keeping an auto generated field ID as well, but I would prefer like keep an provider ID as well, that will be of string type and it will be nullable, I think so. And nullable, and one more thing, I'm using ASP.NET MVC.NET framework, so string is by default nullable here, but in case of .NET Core it's not nullable, so I have to use a question mark to make it a nullable field in that case, because for COD it will not come at that case. Here I will be redirecting it to our dashboard, redirect to a action where I will create an invoice action. So for that I will price the ID as well. ID I will get it like this ID, you can see, like I already did, I think I did it. In the ID equal to new order, it's coming from that. I think new order is an object of an order entity. So new order dot ID, it will give the ID which is generated after saving the database. And you should keep in mind, save order, after you run the save order, then you will get this ID, and this ID I can pass in the parameter of dashboard. So let's create an invoice view model and see what data we have inside the invoice view model. Public class invoice view model. By the way, one more thing, let's talk about that as well. Like I'm thinking like इस वीडियोस में मैं इस पर में ज़्यादा कुछ कवर ना करूं। इसे मैं वैलिडेशन बता दूंगा आने वाले वीडियोस में, क्लाइंट सर्वर वैलिडेशन, और एक हम लोग वो बता देंगे, क्या बता दूंगा मैं, यूज़र का लेआउट पेज किस तरह से बनाऊं मैं यूज़र की चीज़ें। बाकी मैं इमेज को किस तरह से रिड्यूस करने के, साइज को, इमेजेस में लेआउट का थोड़ा बहुत चेंज करने के लिए डिज़ाइन का, ये फीचर मैं इस वाले सीरीज में कवर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ डॉट नेट फ्रेमवर्क में कवर करने से अच्छा मैं डॉट नेट कोर की सीरीज तो बनाने ही वाला हूँ, लेजर पेज वाली, तो उसमें कवर कर लूँ, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि डुप्लीकेट चीज़ें नहीं रहेगी। मैं लिस्ट बनाऊंगा ऑर्डर आइटम का। आप आइन्यूमरेबल भी बना सकते हैं, मैं आप प्रेफर करूंगा आप आइन्यूमरेबल बनाएं। आप लिस्ट भी कर सकते हैं, आइन्यूमरेबल भी कर सकते हैं। एक काम करते हैं, आइन्यूमरेबल ही करते हैं इंस्टेड ऑफ लिस्ट। आइन्यूमरेबल ज़्यादा अच्छा होता है लिस्ट के कंपैरिजन में, तो मैं आइन्यूमरेबल ही करूंगा। और एक कार्ड प्रोडक्ट्स का भी करना पड़ेगा, तो मैं इसको आइन्यूमरेबल ही कर रहा हूँ। आइन्यूमरेबल ही करें आप प्रेफर करें आइन्यूमरेबल यूज करना। कार्ड प्रोडक्ट आईडी आई थिंक ये जरूरत पड़ेगा, नहीं जरूरत पड़ेगा तो हटा देंगे। और फिर एक एप्लीकेशन यूजर का भी होगा। एप्लीकेशन यूजर क्यों कर रहे हैं हम लोग? एप्लीकेशन यूजर हम लोग इसलिए कर रहे हैं, इफ यू सी, एप्लीकेशन यूजर को हम इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं यूजर का डेस्टिनेशन एड्रेस, ये सब चीजें हम लोग मेंटेन कर सके। बाय द वे मैं इसी वाले टेबल में एंटर कर रहा हूँ, लॉगिन वाले में,
तो यूजर्स वाले टेबल में कर रहा हूँ, तो यूजर वाले में सब कुछ कर रहा हूँ। आप चाहे तो अलग से एक टेबल बना के आप वो भी ज्वाइनिंग टेबल बना के ऑर्डर का इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ। ये हमारा शेयर व्यू मॉडल हो गया, ठीक है, शेयर व्यू मॉडल हो गया। अब बाय द वे आपको स्क्रीन दिख रही होगी, मतलब सही से मैंने बनाया है, ठीक ठाक आपका आ रहा है। अब ये डैशबोर्ड वाले में मैं यहाँ पे काम करूंगा, तो क्या करूंगा मैं, आई थिंक आई शुड गो हेयर इन एरियाज। मेरा कंट्रोलर में मैं यहाँ पे रोल्स वाले कंट्रोलर में जाऊंगा, थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं। रोल्स कंट्रोलर साइन इन मैनेजर। बाय द वे मेरे ख्याल से रोल्स की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं कॉपी कर दे रहा हूँ। आई थिंक रोल्स की जरूरत पड़ेगी, मुझे नहीं पड़ेगी रोल्स की जरूरत, फिर भी मैं यहाँ पे सब कुछ कॉपी कर रहा हूँ। ये जितने सब कुछ कॉपी करके ना मैं यहाँ पे आपको यहाँ वाले में डाल दे रहा हूँ। ऑब्वियसली मेरे को रोल्स कंट्रोलर की जगह पे डैशबोर्ड कंट्रोलर करना पड़ेगा। एक्सप्लेन करूँ कि ना करूँ मैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ सब कुछ में, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इमेज को थोड़ा ऊपर करते हैं ताकि आपको दिखे मेरे मैं क्या लिख रहा हूँ। मैंने क्या किया, एप्लीकेशन साइन इन मैनेजर यहाँ पे डाला है, साइन इन मैनेजर, फिर यूजर मैनेजर को लिया है और फिर रोल्स मैनेजर। इस तरह से मैं ASP.NET कोर में करता हूँ, कंस्ट्रक्टर बना के, वही चीज मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। डैशबोर्ड कंट्रोलर मैंने बनाया एक कंस्ट्रक्टर, और नॉर्मल कंस्ट्रक्टर मतलब नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, दूसरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशन साइन इन मैनेजर ये सब चीजें है ना, यूजर मैनेजर दैट काइंड ऑफ स्टफ, उसको मैं असाइन कर दे रहा हूँ। यूजर मैनेजर मैंने यहाँ पे इसको यूजर मैनेजर से असाइन किया, ये वाला। आई थिंक ये बड़ा वाला यूजर मैनेजर कहाँ से आ गया, ठीक है, बड़ा वाला यूजर मैनेजर किया है, ओके, इट्स फाइन इट्स फाइन इट्स फाइन, ठीक है। ये थोड़ा हम लोग ASP.NET कोड में डायरेक्टली इस वाले को इससे बना देते थे, तो इससे सही है। बाय द वे ये क्या कर रहा है ये, हाँ इसमें थोड़ा कुछ अलग कोड लिखा हुआ है, ज्यादा कुछ सोचिए नहीं, ये हमारा ऑलरेडी कोड हमारा जो अकाउंट कंट्रोलर में पड़ा हुआ है उस तरह से करें। ये सब मैं यूजर मैनेजर के सारे डेटा को उठाने के लिए काम कर रहा हूँ मैं, यूजर के डेटा को यूजर वाला टेबल से लेकर। साइन मैनेजर रिटर्न कर रहा है, अगर साइन मैनेजर है तो ये http contents डॉट गेट ओपन कंटेंट्स डॉट गेट एप्लीकेशन साइन मैनेजर करेगा, प्राइवेट सेट करूंगा साइन वैल्यू और ये सब चीजें उस तरह से यूजर मैनेजर का भी कर दिया है मैंने, रोल्स मैनेजर भी कर दिया है। ये हो गया इतना। मैं इनवॉइस वाला डैशबोर्ड कंट्रोलर बना देता हूँ, ठीक है, एक्शन बनाता हूँ, http गेट बनाता हूँ और इसको मैं पब्लिक बनाऊंगा। एक्शन रिजल्ट मैं यहाँ पे एक गलती कर रहा हूँ, मैं नॉन असिंक्रोनस कंट्रोलर बना रहा हूँ। आप असिंक्रोनस कंट्रोलर्स बनाए तो ज्यादा सही रहेगा, आप कर दे, ठीक है। एक मैंने नहीं किया ना, आई थिंक मैंने कभी नहीं किया, तो मैंने इस वाले सेशन में शायद मैंने कवर नहीं कराया है, अगर कराया हो तो आप देख सकते हैं वो वाले वीडियोस को। तो ठीक है, मैं कर लूंगा। इनवॉइस व्यू मॉडल उठाता हूँ यहाँ से, मॉडल इक्वल टू न्यू इनवॉइस व्यू मॉडल, ये हो गया। इसके बाद ये करूंगा मॉडल और ऑर्डर्स कहाँ से आएंगे, मेरा ऑर्डर्स आएगा, मेरा जो DB मैंने एप्लीकेशन कंटेंट्स का बना के रखा है इंस्टेंस ऑर्डर्स डॉट फाइंड करूंगा। फाइंड में क्या करूंगा, ऑर्डर आईडी डाल दूंगा। मैं असिंक्रोनस बना देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ असिंक्रोनस किस तरह से बनाते हैं अगर आपको नहीं पता। असिंक टास्क करूंगा मैं, यहाँ पे आऊंगा इसका इधर, ठीक है, और ये एरर क्यों दिखा रहा है, शो पोटेंशियल फिक्सेस सिस्टम डॉट सेटिंग डॉट टास्क, और ये आई थिंक फाइंड असिंक होता है मेरे पास, हाँ मेरे पास फाइंड असिंक है। और फाइंड असिंक किया तो इसको मैं अवेट करना चाहूंगा। एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्शन रिजल्ट में मुझे कुछ ऐसे व्यू रिटर्न करना होता है, वो मैंने रिटर्न नहीं किया अभी, तो मैं वो उसमें दिखा रहा है। स्ट्रिंग यूजर आईडी निकालूंगा सबसे पहले, तो मेरे यूजर आईडी क्या है, ठीक है, यूजर आईडी कहाँ से आएगा, मेरा जो ऑर्डर्स वाला है उसमें मेरे पास एक यूजर आईडी है, यूजर आईडी है। अब मैं सारे यूजर्स को फाइंड करना चाहता हूँ, मैं चाहूँ तो डायरेक्टली कर सकता हूँ। मैंने एक वेरिएबल बनाया है आपके लिए ताकि आपको आसानी हो। यूजर मैनेजर डॉट हमारा यूजर्स होता है, डॉट वेयर करूंगा, वेयर फिल्टर लगा रहा हूँ। अगर लिंक क्यू नहीं आता है, लिंक क्यू वाली सीरीज को फॉलो करें, हमारे x टेंड्स टू x डॉट id होती है, id डॉट कंटेंस, हमारा कंटेंस कर दूंगा। कंटेंस में मेरा यूजर आईडी हमारा जो ऊपर, ये भैया तू कहां से आ गया, यूजर आईडी हो गई। अब इसका क्या होगा, डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट मुझे करना पड़ेगा। फर्स्ट और डिफॉल्ट क्यों कर रहा हूँ, फर्स्ट क्यों नहीं कर रहा हूँ, ये कोई पूछेगा। फर्स्ट करूंगा ना तो फर्स्ट में अगर नल आएगा तो नल एक्सेप्शन दिखाएगा,
डिफॉल्ट वाले में हमारा अगर नल डेटा है तो वो एक्सेप्शन नहीं दिखाता है, उसको एक वो आपका वो इग्नोर कर देता है। जैसे जावास्क्रिप्ट इग्नोर करने वाला बंदा है, जावास्क्रिप्ट इग्नोर करता है डेटा को, ठीक है को। मॉडल डॉट यूजर्स को यूजर्स करूंगा, कहाँ गया मेरा कार्ड प्रोडक्ट्स, क्या क्या चीजें मैंने कर दिया। कार्ड प्रोडक्ट आईडीज, आई डोंट थिंक कार्ड प्रोडक्ट आईडीज की मुझे जरूरत है यहाँ पे, तो लेट्स कमेंट आउट दिस कार्ड प्रोडक्ट आईडी। मुझे कार्ड प्रोडक्ट आईडीज की भी जरूरत नहीं है, मुझे कार्ड प्रोडक्ट आईडीज की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। कभी कभी यार कुछ चीजें सोचते हैं बनाते हैं पर बाद में पता चलता है कि ये चीजें नहीं होगी। तो कार्ड प्रोडक्ट आईडीज को किस तरह से मैं कार्ड प्रोडक्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, डीबी डॉट ऑर्डर आइटम्स होगा डॉट वेयर एक्स टेंड्स टू एक्स डॉट ऑर्डर आईडी इक्वल टू, अब 3 इक्वल टू डाल दिया मैंने। भाई रिएक्ट जेएस यूज नहीं कर रहा हूँ मैं, यूज कर रहा हूँ हमारा कौन सा सी शार्प। तो सी शार्प में ऐसे नहीं होता। टू लिस्ट असिंक होगा, एरर दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है, और वेट कर दूंगा, आ गया। वर्ड रैप ऑन रखा है ना तो मेरा नीचे चला जा रहा है। रिटर्न व्यू करूंगा, व्यू रिटर्न करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मॉडल। अगर भैया मैं मॉडल पास नहीं कर रहा हूँ ना तो मॉडल में एक्सेप्शन आएगा, आप ऊपर देख रहे हैं मॉडल में एक्सेप्शन आ जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगी यार मेरा डेटा नल क्यों आ रहा है, क्योंकि मॉडल ही नहीं पास किया है मैंने। ऐड व्यू करूंगा मैं, ऐड व्यू करने के लिए आई थिंक आई होप ऐड व्यू का मेरा इस तरह से हो जाए, ना होगा तो मैं फिर कॉपी पेस्ट करूंगा। देखो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है ऐड व्यू का, तो इसको कॉपी करता हूँ मैं। ऐड व्यू इस तरह से हम लोग नहीं कर पाएंगे, ये एक बग है माइक्रोसॉफ्ट वालों का, आई डोंट नो कब तक वो बग को सॉल्व करेंगे। ये यार मैंने ऑलरेडी यार इनको कंप्लेंट की थी पर इन्होंने कुछ ऐसा हुआ नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। कॉपी पेस्ट करेंगे, इनवॉइस वाले में जाएंगे, यहाँ पे आएंगे, ये लेआउट का ये वाला लेआउट मुझे नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे ऑलरेडी व्यूज चाहिए। व्यूज के बाद मेरे ख्याल से ये नहीं चाहिए, एयर डैशबोर्ड वाला नहीं चाहिए मुझे, वो वाला चाहिए, ठीक है। बाकी ये मैं ये हटा देता हूँ, आई डोंट नीड दीज थिंग्स। सबसे पहले मॉडल पास करता हूँ। मॉडल पास करने के लिए क्या करूंगा मैं, आई थिंक मॉडल इस तरह से पास करना होता है। मॉडल क्या है हमारा, अरे मैंने व्यूज के अंदर मैंने वेब डॉट कॉन्फिग के अंदर मैंने डाला नहीं है, तो मुझे पूरा टाइप करना पड़ रहा है। दैट्स द अदर थिंग, आप डाल सकते हैं, आपको अगर टाइप ज़्यादा नहीं करना है, जैसे मुझे टाइप वाइप करना ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैं डालूंगा कहीं। अभी के लिए इतना हो गया, इसको सेव करेंगे, बंद करेंगे, ये भी बंद करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, गो टू व्यू में जाएंगे, यहाँ पे हम लोग काम करेंगे। काम करने के सबसे पहले क्या करूंगा मैं पहले चेक कर देता हूँ मॉडल मेरा नल तो नहीं है। मॉडल डॉट कार्ड प्रोडक्ट्स नल नहीं होना चाहिए, मेरा कैप्स लॉक ऑन हो गया होगा मेरा, यार 2 बार डाल दिया मैंने, ठीक है बढ़िया, सब बढ़िया हो गया। शेयर व्यू मॉडल भी बंद कर देता हूँ। आई थिंक ये वाला मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, तो शो कोड करूंगा इसका, यार थोड़ा सा कॉपी करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, बढ़िया हो गया ना ये, हाँ इतना बढ़िया है। अब इसका थोड़ा छेड़छाड़ करेंगे इसमें। इससे पहले क्या करने वाला हूँ मैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर पड़ा हुआ है, पर तो आईडी लूंगा इसका मैं, मॉडल डॉट ऑर्डर्स डॉट आईडी, ऑर्डर वाले टेबल में आईडी है ना तो ऑर्डर आईडी। प्रिंट ऑब्वियसली मैं फिर इसको प्रिंट करना चाहूंगा, और एक्सपोर्ट आई विल नॉट एक्सपोर्ट इट, आई विल जस्ट प्रिंट इट, या फिर एक्सपोर्ट रख देते हैं, प्रिंट नहीं करते हैं यार सीरियसली। प्रिंट वाला हटा देता हूँ मैं, एक्सपोर्ट वाला रखता हूँ, ठीक है। ऑन क्लिक एक फंक्शन बनाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, तो ऑन क्लिक फंक्शन, लेट्स क्रिएट एन ऑन क्लिक फंक्शन। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को ऑन क्लिक फंक्शन बना देता हूँ मैं, ऑन क्लिक फंक्शन माई फंक्शन। भाई इस चीज को प्रिंट करने का कुछ और अच्छा तरीका हो सकता है जो मुझे नहीं आता होगा, उसका आप चेक कर सकते हैं। इससे पहले मैं क्या करूंगा, नीचे आके यहाँ पे एक फंक्शन बना दूंगा, स्क्रिप्ट टैग बना रहा हूँ। रेंडर सेक्शन के बारे में भी नहीं कवर किया है मैंने यहाँ पे, आई थिंक आई शुड कवर दैट एज वेल। यूज स्ट्रिक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, यूज स्ट्रिक्ट इस्तेमाल क्या होता है, ये सब सीरीज हमारे जावास्क्रिप्ट सीरीज में आई। फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, माई फंक्शन नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ मैं, और इसमें क्या करूंगा, विंडो डॉट एक प्रिंट फंक्शन होता है। आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी यार, कुछ लोग बोलेंगे यार
मैं एक कंटेनर को भी प्रिंट कर सकता हूँ। अगर आपको पता है किस तरह से एक कंटेनर एक आईडी एक स्पेसिफिक आईडी या क्लास वाले को प्रिंट कर सकते हैं तो आप जरूर कमेंट करें, क्योंकि यार ये मेरे को जितना आइडिया है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मेरे से नहीं हुआ है। तो अगर आप पता होगा तो आप, मुझे नहीं आता है वो वाला चीज, आई थिंक नहीं होता होगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। एड्रेस डाल देते हैं। एड्रेस डालने के लिए क्या करूंगा मैं यहाँ पे, ये यूजर नेम होगा। आई थिंक फुल नेम मैंने डाला है कि नहीं डाला है, आई डोंट रिमेम्बर मुझे फुल नेम मैंने डाला है कि नहीं डाला है। अगर मैंने फुल नेम डाला होगा तो यूजर नेम डाल, बाय द वे मैं यूजर नेम डाल दे रहा हूँ। और ये सिटी हमारा, ये स्ट्रीट सिटी ये डाल रहा है। मैं प्रेफर करूंगा क्या करें आप, सिटी डेस्टिनेशन इसे बना सकते हैं। और मैंने पिन कोड वाले में भी काम नहीं किया, तो पिन कोड वाले में भी आपको काम करना पड़ेगा। पिन कोड वाले में भी आप काम करें तो आपके लिए बेनिफिट होगा। स्टेट कंट्री मैंने डालना, और ये फोन नंबर, आई थिंक फोन नंबर पे मैंने काम किया है तो मैं फोन नंबर यहाँ पे डाल दूंगा। फोन नंबर भी आ गया, इनवॉइस आ गया। इनवॉइस दो बार आ रहा है मेरा, पीछे भी नीचे भी आ रहा है यार। ये कहाँ पे इनवॉइस है मेरे पास, यहाँ पे मेरे ऑर्डर आईडी आएगी। यहाँ पे मैं डिजाइनिंग में भी थोड़ा बहुत ध्यान दे रहा हूँ आपको, क्योंकि डिजाइनिंग का भी ये पार्ट, मॉडल डॉट ऑर्डर स्टार्ट। तो मैं क्या कर रहा था, मैं ऑर्डर आईडी डाला, मैंने डेट स्टैम्प भी नहीं ले रहा हूँ। ये भी एक थोड़ी बहुत गलती है मैंने की थी। मैंने डेट स्टैम्प भी नहीं लिया ऑर्डर आईडी के साथ, तो ये भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और स्टेटस में क्या, मैं ऑलरेडी मैं स्टेटस ले रहा हूँ तो मैं स्टेटस डाल देता हूँ यहाँ पे। यार कुछ गलती चीजें करते रहते हैं, हम लोग भी करते हैं यार गलती, तो थोड़ा बहुत गलती मैंने ऑलरेडी किया है गलती। ऑर्डर स्टोर क्या करूंगा मैं, एक स्टेटस, मेरा स्टेटस आ जाएगा। बाय द वे स्टेटस भी आ गया मेरा यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, क्वांटिटी है। I think I should provide the description or not. I don't think I should provide the description later. I think I should provide the name instead of description. So let's change it to name. I think so. Name होगा, quantity में provide करूंगा। और यहाँ पे बाकी ये क्या करूंगा मैं यहाँ पे एक का देख ले रहा हूँ, एक का ले रहा हूँ, बाकी मैं सबका यहाँ पे हटा दूंगा, क्योंकि मैं फॉर ईच का लूप डालूंगा। फॉर ईच के लूप में काम करने वाला हूँ यहाँ पे मैं। बाकी बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं यार रिएक्ट जेएस की, पाइथन की सीरीज क्यों स्टार्ट रिज्यूम नहीं हो रही। पाइथन के कुछ वीडियोस पेंडिंग में है, शूटिंग में बहुत सारे वीडियोस पेंडिंग में है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट एडिटिंग में भी पेंडिंग में है। तो मैं एडिटिंग में भी सोच रहा हूँ, एडिटिंग करूंगा। फिर मैं टाइम नहीं मिल रहा है मेरे को, तो मैं थोड़ा टाइम लेके करके करूंगा। फॉर ईच नहीं आ रहा, इसका मतलब मेरे को एट द रेट डालना पड़ेगा। वार आइटम इन क्या होगा, फॉर ईच में क्या करूंगा मैं ऑब्वियसली चाहता हूँ कि मैं कार्ड प्रोडक्ट्स को मैं फॉर ईच में डालूं। एक बार दिखा देता हूँ कार्ड प्रोडक्ट्स को ही मैं क्यों कार्ड प्रोडक्ट्स डालना, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिस्ट किया ऑर्डर आइटम को। कार्ड प्रोडक्ट्स में ही मैं क्या कर रहा हूँ, ऑर्डर आइटम्स के साथ डेटा ले रहा हूँ कि कितने कितने मेरे ऑर्डर्स, क्या क्या मैंने चीजें डाली है, पाई कर दी है मैंने, तो उसका मैं डालूंगा यहाँ पे। जैसे मैंने बोला आपको यूनिट प्राइस मैंने नहीं लिया है, तो यूनिट प्राइस ये मेरी गलती है, यूनिट प्राइस मुझे लेना चाहिए था। मैं क्या करूंगा यहाँ पे कार्ड प्रोडक्ट्स वाले को, इसको मैं क्रॉस करूंगा और इसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा। ठीक है, आईडी आईडी यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहला मेरा पहला वाला रो क्या है मेरा, आई थिंक क्वांटिटी है। तो मैं हैश डाल रहा हूँ। आई थिंक आई शुड आईडी काइंड ऑफ स्टफ होना चाहिए, आई डाल सकता हूँ मैं, हैश आई डाल देता हूँ यार, इसको मैं आई डालता हूँ। आई डोंट, या फिर क्वांटिटी, आई डोंट थिंक क्वांटिटी चाहिए। चलो ठीक है, मैं इसको ऐसे रख रहा हूँ। फॉर ईच का लूप में आई प्लस प्लस पर कुछ ऐसे काइंड ऑफ स्टफ कर सकता हूँ, दैट्स अदर थिंग। मैं फॉर द टाइम बिंग यहाँ पे मैं इसको एट द रेट मॉडल डॉट आई डी डाल दे रहा हूँ। एट द रेट मॉडल डॉट आई डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, एट द रेट आइटम डॉट आई डी डाल दूंगा मैं यहाँ पे। और इसका प्रोडक्ट का नाम डाल दूंगा मैं, क्या मैं प्रोडक्ट का नाम डालना चाहता हूँ। मैंने ऑलरेडी एक रिलेशनशिप बना के रखी है ऑर्डर वाले टेबल में और प्रोडक्ट वाले टेबल में, तो मेरे लिए आसानी होगी। आप अगर रिलेशनशिप नहीं बना रहे हैं तो फिर आपको जाके जाके प्रॉब्लम होगी। प्रोडक्ट डॉट में प्रोडक्ट नेम आराम से कर सकता हूँ। आई थिंक प्रोडक्ट डॉट नेम है मेरे पास, तो मैं प्रोडक्ट डॉट नेम कर दूंगा। और इसके बाद मेरा तीसरा कॉलम जो है मेरे ख्याल से ये मेरी क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी कहाँ से आएगी, क्वांटिटी के लिए मैंने ऑलरेडी मैंने क्वांटिटी के नाम का एक वो डाल के रखा हूँ, तो मैं क्वांटिटी यहाँ पे इस तरह से मैं मेंशन कर सकता हूँ। तीसरा कॉलम है यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, अभी के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एट द रेट आइटम डॉट प्रोडक्ट डॉट प्राइस का, बट मैं रिकमेंड करूंगा आप क्या करें,
आप यहाँ पे यूनिट प्राइस का कॉलम डाल ले वो सही रहेगा। अमाउंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे एक अमाउंट निकालना पड़ेगा। यहाँ पे वार अमाउंट नाम का एक फोल्डर मैं यहाँ पे एक वो बनाऊंगा। इसको मैं किस तरह से निकालूंगा, ऑलरेडी प्राइस इंटू क्वांटिटी हमारा यूनिट प्राइस होगा, तो प्राइस ऑफ इंटू क्वांटिटी मैं यहाँ पे इस तरह डालूंगा, आइटम डॉट प्रोडक्ट डॉट प्राइस इंटू आइटम डॉट क्वांटिटी, ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। और इसका अमाउंट को निकालने के लिए क्या करूंगा, @ अमाउंट में कर दूंगा। यहाँ पे ये अमाउंट भी आ गया मेरा यहाँ पे इस तरह से, और उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन ये सब चीजें डाल के रखी है। डिस्काउंट टैक्स वैक्स डाल के रखा है, ऑब्वियसली मैं टैक्स और ये सब चीजें मैं डालूंगा नहीं। आप इसको भी मेंटेन करना चाहते हैं, अगर टैक्स वैक्स कुछ लग रहा है, जीएसटी और ये सब चीजें, तो आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। मैं सिर्फ टोटल अमाउंट लिख रहा हूँ यहाँ पे अभी के लिए। जीएसटी बीएसटी आपका जितना भी लग रहा है आप वहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। आई थिंक जब आप गूगल पे कर रहे होंगे या फिर रेजर पे जो भी आप इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो उस केस में आपका शायद वहीं पे कट जाएगा, तो वहाँ पे फिर आप टोटल अमाउंट वहीं से आप कैलकुलेट करेंगे। तो मेरे पास टोटल अमाउंट ऑलरेडी पड़ी हुई है। टोटल अमाउंट मेरा क्या है, मेरा ऑर्डर टेबल में ऑलरेडी टोटल अमाउंट है, तो मैं ऑर्डर टेबल से मैं उठा सकता हूँ। ऑर्डर डॉट आई थिंक अमाउंट नाम था मेरा, या टोटल अमाउंट, ठीक है मेरा ये भी आ गया टोटल अमाउंट। अब इसके बाद में यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है। हम लोगों ने रेजर पे इंटीग्रेशन किया है, तो रेजर पे में ऑलरेडी मैंने पे कर दिया, तो मेरे पास एक स्टेटस वाला है, इसमें मैं चेक कर सकता हूँ। अगर हमारा पेड नहीं है तो मैं पे नाउ का दिखाऊंगा बटन, नहीं तो फिर मैं नहीं दिखाऊंगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इफ चेक कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मॉडल डॉट ऑर्डर डॉट स्टेटस नॉट इक्वल टू पेड। अगर ये मेरा पेड नहीं है तभी मैं इसको ये दिखाऊंगा, वरना मैं नहीं दिखाऊंगा। कुछ चीजें आपको सही करनी पड़ेगी, कुछ चीजें आपको सही करनी पड़ेगी, लेटर ऑन मैं भी सोचूंगा सही करने के लिए। बाकी ये मेरा पेज बन गया मेरे ख्याल से। और थोड़ा बहुत बैकग्राउंड स्टाइल में चेंज करूंगा, मुझे पसंद नहीं है ये वाला कलर, तो मैं थोड़ा चेंज करने वाला हूँ। मैं चेक करूंगा ये वाला कलर कहाँ कहाँ पे है मेरे पास। मेरा इस पे है और इस वाले में है, चलो ठीक है ना। तो इसकी जगह पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये जो टेबल वाला है तो इसको मैं यहाँ पे टी हेड वाला इसको मैं हटा दूंगा। इसका मैं एक क्लास डालूंगा बीजी डेंजर। मुझे रेड कलर बहुत पसंद है तो मैं बीजी डेंजर डाल दूंगा। और इसका मैं एक कलर मुझे पता है, इसका ऑलरेडी मुझे कलर पता है, तो मैं इसका कलर डाल दूंगा DC354 DC3545 DC343545 ये हमारा कलर है भाई। इसका स्पेस क्यों आ रहा है, बाकी आई डोंट थिंक ये सब बन गया। इसको एक बार सेव करते हैं, स्टार्ट विदाउट डिबगिंग करता हूं मैं। आई होप इट विल वर्क फाइन, सब कुछ सही से काम करेगा। और थोड़ा बहुत मैं सोच रहा हूँ या तो ये कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, गड़बड़ है, कहाँ गड़बड़ है। एरर लिस्ट में जाऊंगा, इसको इनवॉइस व्यू मॉडल की जगह इनवॉइस मॉडल कर रहा हूँ, एम्बिग्यूटी आ जाएगी नहीं तो फिर मेरे को। और इसको यहाँ पे और इनवॉइस वाले में बाकी सब कुछ बंद कर देता हूँ, स्टार्ट विदाउट डिबगिंग करता हूँ। तो ऑलरेडी मैंने एक इनवॉइस व्यू मॉडल आई थिंक आई ऑलरेडी क्रिएटेड दैट, तो इसके लिए मैं इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। तो बता देता हूँ एक चीज, अगर आपने हमारा डाटा फैक्ट्री सीरीज फॉलो नहीं की, डाटा फैक्ट्री सीरीज फॉलो कर सकते हैं, डाटा फैक्ट्री सीरीज फॉलो कर सकते हैं, आप एजोर डेवऑप्स की सीरीज फॉलो कर सकते हैं, पाइथन की सीरीज फॉलो कर सकते हैं, डॉट फ्रेमवर्क डॉट कोर की सीरीज फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे सिनैप्स आने वाली है, डाटा ब्रिक्स आने वाला है हमारे चैनल पे, और रिएक्ट जेएस की सीरीज चल रही है, एंगुलर आने वाला है हमारे चैनल पे, लिंक्यू भी आने वाला है हमारे चैनल पे, और नेक्स्ट जेएस भी आने वाला है। तो ये सब सीरीज को अगर फॉलो नहीं किया तो ऑलरेडी फॉलो कर सकते हैं हमारे सीरीज को, ठीक है। जब तक पेज रन हो रहा है, पेज लोड हो गया है मेरा, लॉगिन करता हूँ। लोडर मैंने डाल के रखा है, लोडर चलेगा, लोडर बंद हो भैया। भाई मेरा साइट हैंग हो गया, लैग कर रहा है। इमेजेस बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे मैंने बोला ना, इमेजेस को सही करना पड़ेगा। मैं इस वाले सीरीज में शायद ना बताऊं मैं आपको, क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, सीरीज बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है आपका। तो मैं क्या करूँगा, ASP.NET कोर वाली सीरीज में जब हम लोग कवर करेंगे रेजर पेज वाला,
उसमें मैं आपको बता दूंगा किस तरह से क्या होना चाहिए आपका। वेटिंग फॉर लोकल होस्ट आप दे सकते हैं, लोडर थोड़ा देर आ रहा है, ठीक है, दैट्स फाइन, ठीक है। मैं यहाँ पे जाऊँगा, डैशबोर्ड वाले में जाऊँगा। बाद मैंने एक जुगाड़ किया है आपको दिखाने के लिए इनवॉइस पे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यूआरएल में देख रहे हैं, ऑर्डर आईडी मैंने एक वन करके रखा है, डैशबोर्ड और डैशबोर्ड इनवॉइस। यहाँ पे इस तरह देखेंगे मेरा यहाँ पे बढ़िया मेरा ये आ रहा है 98,250 रुपीज़ का खर्चा हुआ है इसको। और इसने एक टी शर्ट बाई की है 250 रुपीज़ की। यूनिट प्राइस हमारा इतना आ रहा है जो, और ये एक अमाउंट हमारा इतना 84। इसने एक मैजिक बुक प्रो बाई किया है 42,000 वाला, और एक 84,000 का ये बाई किया। हॉनर 9X प्रो वाला एक वो लैपटॉप बाई किया है, इसकी प्राइस अराउंड 14, सॉरी लैपटॉप ने बाई किया, एक फोन बाई किया, उसका 14,000 प्राइस है। पॉपअप कैमरा के साथ आता है, बहुत कुछ सही है। और ये ऑनर मैजिक प्रो एक लैपटॉप बाई किया है जिसने इसमें इसने लैपटॉप बाई किया है जिसकी जो शायद राइजन प्रोसेसर वाला बाई किया है शायद उसने, और थोड़ा महंगा होगा शायद, एक्चुअल प्राइस महंगी होगी। और 2 लैपटॉप बाई किया है उसने, एक टी शर्ट भी बाई किया है। बाकी इसका मॉडर्न कॉलोनी इसका स्टेट आ रहा है, ये वाला हटा सकते हैं स्टेट वाला, ये वाला मैंने ये वाला एड्रेस पड़ा हुआ है इसका। और इनवॉइस यहाँ पे लिखा है MDV कुछ लिख के आ रहा है, SVG, और इसको मैं हटा सकता हूँ। इनवॉइस हट गया, ये इनवॉइस लिख के आ रहा है, बाकी सब कुछ बढ़िया लिख के आ रहा है यहाँ पे। ये यहाँ पे थैंक यू फॉर परचेज भी आ रहा है। आई थिंक स्टेटस पेड यहाँ पे लिख के आ रहा है। अच्छा मैंने यहाँ पे नीचे डाला नहीं है, इसमें मैंने बटन तभी दिखाऊंगा जब मैं जब हमारा क्या होगा पे नहीं किया है उसने, COD लिया है, तब उस केस में होगा ये। एक छोटे चीज क्या कर लेता हूँ मैं, इससे पहले ऐड ऑर्डर्स वाले कंट्रोलर में आता हूँ, मैं इसको रीडायरेक्ट करूंगा कहाँ पे, इनवॉइस वाला मेरा ये होगा, इनवॉइस होगा, कंट्रोलर का नाम क्या होगा, डैशबोर्ड कंट्रोलर होगा मेरा, कॉमा में न्यू डालूंगा, एरिया हमारा डैशबोर्ड होगा। साथ में एक और चीज होगी, क्या होने वाला है हमारा यहाँ पे ऑर्डर आईडी होगी, ये किसके बराबर होगी हमारी, ये हमारी जो आईडी पड़ी हुई छोटी सी नन्ही सी आईडी पड़ी हुई है इसको बराबर। जब यूजर ये पेमेंट कर देगा रेजर पे में, तब इसको इनवॉइस वाले पेज वाले में मैं रीडायरेक्ट कर दूंगा और हमारा डेटा इस तरह से आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो में जाना किस तरह से मैं ऑर्डर वाले इनवॉइस पेज को बना सकता हूँ। बाकी सीरीज फॉलो कर सकते हैं, रिएक्ट जेएस की सीरीज फॉलो कर सकते हैं, नेक्स्ट जेएस सीरीज आने वाली है, एंगुलर की सीरीज आने वाली है, हमारे में CSS की सीरीज चल रही है, पाइथन की सीरीज चल रही है, हमारा एजोर डाटा फैक्ट्री की सीरीज चल रही है, ASP.NET Core वेब API वाली सीरीज चल रही है, हमारे डॉटेड फ्रेमवर्क ये वाली सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, हमारे एजोर डेवऑप्स की सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन की सीरीज आ रही है, जावा शॉर्ट्स वाली सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, जावा के लॉन्ग वीडियोस भी आएंगे, पाइथन की सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, डाटा फ्लोज को फॉलो कर सकते हैं, एज्योर के एज्योर हमारा डाटा फैक्ट्री सीरीज तो है ही, साथ में एज्योर के मेरे बेसिक्स ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं जिसमें मैं बताऊंगा कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल किस तरह से आप वो हैंडल कर सकते हैं, वो सारी चीज को फॉलो करेंगे आप। लीड कोड की सीरीज भी आने वाली है, कुछ रीजनिंग और कॉन्ट्स के पे भी फोकस करेंगे हम लोग, ताकि आप लोग सेकंडों में बिना पेन पेपर के हवा में आप कैलकुलेशन करें। वो चीज मैं सिखाऊंगा जो कोई नहीं सिखाता, वो हमारे इस चैनल पे मिलने वाला है। शायद ही कोई सिखाएगा, 10 में से एक बंदा शायद सिखाता होगा आपको। वो सारी चीजें हमारे चैनल पे आएंगे, जो लोग फ्रेशर्स है उनके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो मैं मिलूंगा आपको दूसरे वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।